20 for services, 40 for goods. And if I'm doing engage in both, then obviously limit would be 20 lakhs. So first proviso say, again, I'm talking about earlier situations. Again, I'm talking about earlier situation when that if you are doing the business in the special category state, then limit would be 10 lakh. They have given the right. Second proviso talks about they have given the right to enhance the limit from 10 to 20 lakhs. Now moving further, this proviso says that if you are exclusively engaged in the supply of the goods, then if you are exclusively engaged in the supply of the goods, then limit would be 20 to 40. If you like to enhance the limit, you can enhance the limit. So now I can say the state has given the power whether they like to increase or they don't like to increase. In most of the cases, it has been increased, but yet, as Vinay Tripathi has correctly pointed out, that yes, there are certain states in which the limit is still 20 lakhs. We'll talk about that. And next is the explanation. So that explanation you will find in section 22 also. At the same time, you will find in section 10 also, section 10 composition. So there is one category of the transaction which will not create your ineligibility. What is that? Interest income. Interest on what? Loan, advances. Suppose I have the fixed deposit. Try to understand. I have the fixed deposit in the bank. I am receiving the interest. So basically, if I am earning the income, it is supply of the goods or services. Sir, it is supply of services. Assume, sir, it is my business fixed deposit. I'm not talking about my personal fixed deposit, because there would be the question on whether the transaction is a supply or not. So I'm talking about I am doing exclusively supply of the goods, plus I have some fixed deposit on which I am earning the interest, and that interest income is a supply of services. Now think about, can you say to me, I'm exclusively engaged in the goods? Can you say to me, I'm exclusively engaged in the goods? Answer would be no, because otherwise I'm also earning the interest, which is a service. So from my perspective, if you see my profit and loss account, there will be the supply of the goods as well as interest income. It will be the service. Now the question is, can I take the benefit of the proviso? Which proviso, sir? The proviso which talks about the limit would be 40 lakhs. If you are engaged exclusively in the goods, the limit would be 40 lakhs. That explanation relaxes me that if I am engaged in the supply of the goods, also I am earning the interest income. So interest income will not create my ineligibility to take the benefit. Benefit of what? 40 lakhs. So let's read together. For the purpose of this subsection, a person shall be considered to be engaged exclusively in the goods, even though he is earning the interest income. Interest is exempt by virtue of the serial number 27 of exemption notification. Interest is exempted, but we all know that there is a concept of aggregate turnover. There is a concept of aggregate turnover which has been defined in section 2 clause 6 of CGST Act, which says add taxable supplies, add exempted supplies, add export, interstate. You need to add everything. So it means if I'm earning the interest, which is a service, so can I be still counted? Can I be still called as a exclusively in the goods? Answer would be yes, because of this explanation. Now, what is the meaning of special category state? The special category state, again, the third explanation to section 22, except these are the state. Mean the state as so they are defined, they are linked with the definition of Indian Constitution, Article 279A, Clause 4G, and excluding these state. So these are not the special category to the extent of the GST. And what is the meaning of the state? State means union territory along with legislature. So we know that Delhi, Puducherry, Jammu and Kashmir,
three union territory are such which are having the separate legislature. So in the GST, they will be considered as state. So normally 28 states are there. Now in the GST, if you like to ask what would be the what would be the state, what would be the total number of the state? 28 plus 3. Total 31 states are there in the GST, and rest 5 are union territory. And these are the special category state, and out of which I can say now there would be the 4 special category state. Moving to the respective special category wise threshold limit, this is in front of you. So still they have the limit of 10 lakh rupees. These are the state limit of 20 lakh and the limit of 40 lakhs. So I have given the special category state wise threshold limit. You can refer after the webinar also, because the PPT would be shared to all. Section 22 subsection 2 and subsection 2 says that if I am registered in the pre-GST era, I have to take registration in the GST. 22.3 and 22.4, it says that if I have transferred the business by virtue of the amalgamation, merger, on account of succession, if I have transferred the business, the new entity or transferee has to take mandatory registration. First, they have to take mandatory registration, and after that, if they feel, they can surrender their GST number if not required. Any questions so far? I hope everything is okay, comfortable. Any questions so far? Please let me know. Fine, no question. Vikasji, please put the question in the chat box. So I'm requesting every participant, if any participant has the question, please put the question in the chat box. So till 7:30, my humble request will not be allow you to speak. It will take a lot of time. So meanwhile, you can put the question in the chat box. I'll see and then give the reply accordingly. If a partnership want to change the GST number in a company, it shall need to take a new GST number and the company and the sender from registration. So the only point which you need to see, whether for this change, whether after this change, my permanent account number would remain same or would remain changed. Will my PAN number would same or it's going to be changed? Only simple question I'm asking Tina Goswami, whether my PAN number would be same or PAN number is going to be changed. If PAN number is going to be changed, then you need to take a new registration, surrender the existing. Situation number 2, if the PAN number is not going to be changed, you can make the amendment in the core and non-core field. There are the options. You can change the name if the PAN number is same. No, I got your point. So I like to explain to all the participants what should be the approach to see whether I have to take the GST new registration or I have to continue with the existing number. That is very good point. Whether exempted supply by way of interest income will be counted in the aggregate turnover or not, that is really a good question. So I can share my view. This is very good comparison study. When I refer the section 10 composition, one is explanation, which talks about same thing, that it will not create ineligibility. Perfect. At the same time, they have issued one order by saying that, repeating again, they have issued one order under composition scheme. They have issued one order saying that it will not counted in the calculation of aggregate turnover. It will not be counted in the calculation of threshold limit for composition. But if I'll come to the section 22, the one relaxation is there, that it will not create ineligibility. But answer would be whether it will be counted in the aggregate turnover or not. 100% yes, in my view. Radhe, absolutely correct. You can surrender your GST number. Absolutely correct. If your turnover is below threshold limit, you can definitely surrender GST number, whether it is 20, 40, 10, etc.
I am supplying the accounting services from Delhi to Mumbai, whether it is required for GST registration or not. Just wait, I'll come to the section 24. You will get the answer. Let's move further to the section 24 so that we can further try to understand the provision. So section 22 I have completed. Moving to the section 23. Section 23 is giving the relaxation for not taking the GST registration. There are two situations. Suppose I am supplying the exempted or non-taxable item, and word is exclusively. I am making the supply of exclusively exempted item or those items which are not leviable to GST. In that case, I am relaxed irrespective of my turnover. Whether petrol is liable to GST or not, we all know that petrol has been excluded in section 9 subsection 2. That it is currently not under the GST ambit. I have the petrol pump and only supplying the petrol. Do I need to take registration? Answer is no. Suppose I am supplying the only petrol, no taxable item. By virtue of the section 23, I am not required to take registration. However, we all know that petrol pump are making also supply the lubricant oil, which are taxable. And as a result, I have the exempt supply of 99 lakh. But I have the supply of the lubricant oil only 1 lakh. My aggregate turnover become 1 CR, which is more than 20 or 40 lakhs. And I am not engaged exclusively in the supply of exempted goods or not leviable to tax. Therefore, if petrol pump are only supplying the petrol, not required to take registration irrespective of any turnover. But if they start making taxable supply, say ₹1 only, they have to take compulsory registration. Provided by adding all the turnover, it means by calculating aggregate turnover, the limit should enhance, limit should increased. Coming back, and if agriculturist is making the supply of the produce out of the cultivation of the land, मतलब खेती बाड़ी करके अगर जो चीज मैं बनाता हूं उसको अगर मैं सप्लाई करता हूं तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रिलैक्स. बट सपोज आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रीडिंग, dairy farming, these are not the produce out of the cultivation of land. I have to take registration if the limit is increased, provided it should not come under the clause A. Now see one important thing. Suppose in between government like to give any relaxation in the GST in registration, because section 22, section 23, section 24, these are going to be changed only when there is an amendment in the Finance Act. So for making the amendment in the section, it has to be routed through both the House of the Parliament. Then there is one alternate mechanism, section 23 subsection 2, in which government has the power to issue the notification and they can specify where they are not required to take registration when they are relaxed from registration. So normally 23(2) is being used as a tool whenever government like to give the relaxation. For example, the limit 20 to 40, all this limit has been changed on 1 April 2019 with effect from 1st April 2019. At that time, Act was not amended. What they have issued? Using the power of 23 subsection 2, they've issued the notification number 10 by 2019. And whenever subsequent Act was amended, they have inserted the proviso. Now, there is one question which I will give the answer, but there is notification, but we'll come to the section 24 first. Section 24 talks about 12 situation wherein I am compulsory needed to take registration in the GST. Section 24 talks about 12 situations where I need to take compulsory registration in the GST.
Situation number one, the person making any interstate taxable supplies. Please note the word is taxable and after that word is supply. It is not talking about any goods or services. Now I am asking the same question to all the participants which has been raised by Rajmi. I am asking the question, read the question that has been raised by one of our participants. If I am an accountant, consulting services, accounting services, I am located in Delhi, my client is located in Mumbai, and my total transaction value is 10 lakh rupees. Do I need to take registration compulsory or not? I'm not talking about voluntarily. Do I need to take compulsory registration? Kindly give the answer. Do I need to take compulsory? Do I need to take compulsory registration? Do I need to take compulsory registration? Compulsory means mandatory. Sir, we know that in case of the supply the services, prima facie, I know the limit is 20 lakhs. But assume that I am doing the supply from Delhi to Mumbai. Accounting services. Sir, I'm talking about services only, correct? No? Not goods. Perfect. We both are at same level, at par. So if I'm doing the accounting services interstate, do I need to take compulsory or still 20 lakh option are there? Do I need to take compulsory registration? I can see there are 50 participants and my humble submission to all the participants, kindly give the answer. Absolutely correct. So the answer is not compulsory required. Not compulsory required. So I can provide the service from Delhi to Mumbai of rupees 10 lakh without taking the GST registration. Sir, what is that? Then what is the meaning of section 24? Let's talk about compulsory registration. Again, I'm saying whenever government like to give the relaxation, they will use section 23 subsection 2 issue the notification. For services, there are 3 notifications. For services, there are 3 notifications. In September 2017, they have given the relaxation only for the job work service. If job worker are providing the interstate supply the service, he is not required to take registration till his limit not cross threshold limit 20 lakhs. In October 2017, they have given the extension to all such category. They have given the relaxation to all such category. If I am supply of the service, I can provide interstate. I will not be covered by section 24 clause 1. I am not required to take registration till my threshold limit not cross 20 lakhs. Then third notification in the month of November 2017, they have given that even service provider can make the supply through e-commerce operator. So the 3, I can say the first is now not important because after giving the relaxation to all category, now I can say if I am a service provider, whether I make interstate, whether I make intra, whether I make direct supply to the consumer D2C, or I make through e-commerce operator, I make B2B, doesn't matter, sir. I am doing the export, I'm doing the supply to the SEZ unit. Sir, I am relaxed till 20 lakh. I can provide the service till 20 lakh, not required to take registration. Now I like to highlight the relevant notification which we have discussed here. The first notification 7 by 2017, second notification 10 by 2017, third notification 65 by 2017. If I'll combine all the things, the concluding evidence, the conclusion is I can provide the service without registration till 20 lakhs. Correct. Moving further. So now I can say after these 3 notifications, I can say this particular clause is only with respect to the goods, not applicable for services. Rajmi, I think you have received your answer. Is it clear? Great. Now, if I am casual taxable person, if I am a CTP, casual taxable person, I am non-resident taxable person. I'm talking about situations where registration compulsory is required. Fine. If I am fall under reverse charge, if I will fall under reverse charge, suppose I am
not making any taxable supplies, or my supply is exempted because of any reason, I'm not required to take registration, but I have taken certain services which is covered under reverse charge, and therefore I have to take compulsory registrations. There may be the possibility of mistake. What can be the possibility of the mistake? Simple example. First, I'll ask the question. Suppose I am unregistered person in the GST. I am doing the business. Like say I am having the kirana shop in my locality, Delhi. I'm from say Lakshmi Nagar. Lakshmi Nagar मेरी एक शॉप है, वहां से मैं लोकल किराना सेल करता हूं. अब मैंने जीटीए की सर्विस ली, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस ली. अभी तक तो मैं रजिस्टर्ड नहीं था क्योंकि मेरी लिमिट 40 लाख के नीचे है. सो क्या मैं जीटीए की सर्विस लेता हूं, एज्यूम अमाउंट इज 10,000 रुपीज, क्या मुझे कंपल्सरी नंबर लेना पड़ेगा या नहीं? वी ऑल नो दैट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज आर कवर्ड इन द रिवर्स चार्ज. एम आई राइट? जीटीए इज कवर्ड इन द रिवर्स चार्ज. सो मेरी एक दुकान है जहां से मैं नॉर्मल सप्लाई करता हूं, मैंने अभी तक नंबर नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे पास में लिमिट अवेलेबल थी. बट मैंने जीटी की सर्विस ले ली, मैंने एडवोकेट की सर्विस ले ली, मैंने कोई अपने बिजनेस पर्पस के लिए, लीगल कंसल्टेंसी ली. Do I need to take compulsory registration by section 24(3)? Now that point comes, do I need to take compulsory registration? Here I have one point. Here I have only one point. मुझे क्या लगता है कि अगर RCM applicable है तब मुझे नंबर लेना है. See, listen my question carefully. Listen my point carefully, which I like to convey. अगर RCM applicable है तो कंपल्सरी नंबर लेना है. पहले चेक तो कर लूं कि कंपल्सरी है या नहीं है. हम नॉर्मली क्या करते हैं, सॉरी मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूं. हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे जीटीए का नाम सुनते हैं, जैसे लीगल सर्विस का नाम सुनते हैं, मन में ऐसा आता है नहीं ये तो आरसीएम है ही है. नहीं सर, जरूरी नहीं है. क्योंकि जब भी हम कोई आरसीएम का नोटिफिकेशन का कोई भी सीरियल नंबर पढ़ते हैं, जैसे मैं 13/2017 पहले सीरियल नंबर की बात कर रहा हूं. जीटीए अगर सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस किसके रिस्पेक्ट में दी है? इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड. कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस satisfied. Condition with respect to the category of the service satisfied. And there are third column or fourth column which talks about the category of the recipient. You all need to check whether I am covered in the category of the recipient or not. Let's talk about, there are 7 specified categories of the recipient: society, cooperative societies, factory, body corporate, partnership firm, casual taxable person, and एक और category है any registered person in the GST. If I will talk about myself, I will not fall in the 7 specified category. ये तो पहली बात हुई. क्या मैं 7 कैटेगरी में फॉल करता हूं? आंसर इज नो. तो पहला बात तो क्लियर होगा, ये ट्रांजैक्शन जो है आरसीएम में फॉल नहीं करेगा, मेरी लायबिलिटी नहीं आएगी. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट हैज इश्यूड द नोटिफिकेशन इन अक्टूबर 2017, serial number 21 capital A, serial number 21 capital A, by which they have said that अगर recipient उन 6 कैटेगरी को छोड़ दो, रजिस्टर्ड को हटा दो, बाकी जो 6 कैटेगरी बची उनके अलावा अगर कोई और पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड है, ट्रांजैक्शन वुड इटसेल्फ बी एग्जेम्प्टेड बाय वर्च्यू ऑफ द सीरियल नंबर 21. इसका मतलब पहला मैंने देखा, क्या मैं स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ द रिसिपिएंट हूं? नहीं. देन आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा. मैं ये देखना चाहता हूं ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या नहीं है. सर वो ट्रांजैक्शन ही टैक्सेबल नहीं है. इन दैट केस, इन माय एग्जांपल नंबर 1, wherein I have received the GTA service of rupees 10,000, do I need to take compulsory registration? Answer is no. Is it? I hope it is clear, right? Anybody can ask the question. अगर आपका कोई काउंटर है, अगर कोई काउंटर कंसर्न है, काउंटर ऑब्जेक्शन है, रिक्वेस्टेड टू आस्क, विल डिस्कस. क्योंकि वी ऑल आर लर्निंग द जीएसटी, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है. सो वी ऑल आर लर्निंग, वी कैन म्यूचुअली डिस्कस. इफ आई विल बी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम. सेकंड मेरा क्वेश्चन क्या था, अगर मैं बिजनेस पर्पस के लिए जीटीएस एडवोकेट सर्विस लेता हूं, श्योर मैं रिपीट कर देता हूं, पहले मैं एडवोकेट कंप्लीट कर देता हूं, पूजा जैन, एंड देन आई विल कम बैक टू द दिस जीटीए वाला कॉन्सेप्ट. अगर मैं लीगल सर्विस लेता हूं,
लीगल सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? एनी एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट। मैंने सर्विस किन से ली? सर इन्हीं से लिए। कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द सप्लायर ऑफ सर्विस सैटिस्फाइड? यस, फाइन। कैटेगरी ऑफ द सर्विसेज कहते हैं लीगल सर्विस। लीगल सर्विस उसमें एक कॉरिजेंडम आया था 25 सितंबर 2017 को, एंड उसको मैं रीड करता हूं। तो कोई भी सर्विस विद रिस्पेक्ट टू एनी ब्रांच ऑफ द लॉ, मैंने जीएसटी की कंसल्टेंसी ली, मैंने कोई और कंसल्टेंसी ली, इट इज लीगल सर्विस। कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी ऑफ सर्विस सैटिस्फाइड? यस सर सैटिस्फाइड। अब बात करता हूं रिसिपिएंट की कैटेगरी। वो कहता है बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। एंड बिजनेस एंटिटी क्या है? द पर्सन हु इज डूइंग द बिजनेस। तो मैं काम तो बिजनेस ही कर रहा हूं सर, मैं ऐसा नहीं हूं कि बिजनेस नहीं करा। वहां पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कुछ भी जिक्र नहीं किया हुआ। प्राइमा फेसी आई कैन से आई विल बी कवर बाय आरसीएम ट्रांजैक्शंस। नाउ आई हैव टू सी पैरेलली एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। वहां पे एक लीगल सर्विस के रिगार्ड में सीरियल नंबर 45 है, सीरियल नंबर 45 है ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017। अब जो सीरियल नंबर 45 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 3 तरह के लोग, अगर लीगल सर्विस दी गई है किसी ऐसे पर्सन को जो बिजनेस नहीं कर रहा, वो ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है। सर यहां तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं तो इस एग्जेम्पशन में कवर नहीं हुआ। एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड एग्जेम्पशन, अगर मैं बिजनेस तो कर रहा हूं बट मेरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर इतनी है जिसके कारण मैं लाइबल नहीं हूं रजिस्ट्रेशन के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, माय एग्रीगेट टर्नओवर in the preceding financial year is such that I'm relaxed not to take registration. क्या कहते हैं आप? Will I be fall in this exemption or not? I would be. I would fall, definitely I would fall. सर मैंने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई। And because I have not taken the registration, why my turnover has not crossed threshold limit, I would be covered by exemption, this serial number 45. It means I have taken the legal service, transaction itself is exempted. Then why the question would of the tax? Neither recipient nor the supplier, nobody will pay the tax on this transaction. Legal services अगर मैं unregistered person हूं, भले मैं अपने other than business purpose के लिए लूं या business purpose के लिए ले रहा हूं, लेकिन business purpose के लिए ले रहा हूं, लेकिन मैं रिलैक्स हूं रजिस्ट्रेशन से, बिकॉज माय टर्नओवर नॉट क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट, आई एम taking the legal service, that will also be exempted, and therefore in my both of the question there is no compulsory registration. These are the only 2 points which I like to explain. I'll explain again in brief the point which has been raised by Pooja. Kindly repeat the point of the GTA. पहला पॉइंट है, GTA के केस में आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा? अगर रिसिपिएंट 7 स्पेसिफाइड कैटेगरीज का है। 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी में कौन आता है? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, एनी रजिस्टर्ड पर्सन इन द जीएसटी एंड पार्टनरशिप फर्म। तो मैं क्या था? मैं एक अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल था जो कि बिजनेस कर रहा है। क्या इन 7 कैटेगरी में फॉल कर रहा है? आंसर इज नो। तो पहला पॉइंट आरसीएम एप्लीकेबल नहीं हो सकता ऑन मी। इज इट क्लियर? पहला ये पार्ट कंफर्म करें, मैं सेकंड पार्ट में आता हूं। पहले मुझे इस पार्ट को कंफर्म करें कि ये पार्ट क्लियर है, मिस पूजा जैन। सेकंड पार्ट, अब पॉइंट ये आता है कि अगर रिसिपिएंट उस कैटेगरी का नहीं है तो लाइबिलिटी सप्लायर पे शिफ्ट हो जाएगी ना। लाइबिलिटी सप्लायर पे शिफ्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड द ट्रांजैक्शन इज नॉट एग्जेम्प्टेड। आपको याद है जुलाई 17 में जब जीएसटी आया था, तब ट्रांसपोर्टर रेडी नहीं था किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन का माल कैरी करने के लिए। कारण क्या है मालूम? क्योंकि लाइबिलिटी उसके ऊपर आ जाती। भाई अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, तो सप्लायर को जीएसटी देना पड़ेगा ना, अनलेस एंड अंटिल द ट्रांजैक्शन इज नॉट एग्जेम्प्टेड। एंड एज ए रीजन अक्टूबर 2017 में एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में नया सीरियल नंबर ऐड किया, 21 कैपिटल ए। क्यों ऐड किया? ताकि ट्रांसपोर्टर के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट ना हो। क्या था वो? सर इन 7 लोगों को हटा दो, रेदर आई शुड से 6 लोगों को हटा दीजिए। इन 6 लोगों के अलावा अगर कोई लोग अनरजिस्टर्ड है, इफ द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड टेकिंग द जीटीए सर्विसेज अदर देन 6 स्पेसिफाइड कैटेगरी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फैक्ट्री,
बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इन 6 कैटेगरी को हटा देता हूं। उसके अलावा अगर कोई भी रिसिपिएंट है जो कि अनरजिस्टर्ड है, भले वो बिजनेस कर रहा है, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं सर, I am taking the GTA service that will be covered in the exemption notification serial number 21 capital A. Does it make sense? Kindly confirm. Now, if I fall in the 7th category, leave it, whether partnership firm, I'm a registered or not, doesn't matter. I'm a body corporate, I'm registered or not, doesn't matter. Casual taxable person, I have to take compulsory registration if I receive the GTA services. I'm society, doesn't matter you are registered in the GST or not, but if you have taken the GTA service, you are covered in the 7th category, you have to take compulsory registration in the GST. I think aapka bhi question answered, right? Linova ji, not sure what is your name. Moving further, अब हम बात करते हैं एक बार ई कॉमर्स ऑपरेटर के ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हम 3 कैटेगरी की बात करेंगे। यहाँ पे हम 3 कैटेगरी की बात करेंगे। अरुण is making the supply through Amazon to Mr. B. ठीक है, 3 लोगों की बात करें, एक अरुण की बात कर रहे हैं और एक अमेजन की बात करें। इसमें हम 3 कंपल्सरी ट्रांजैक्शन को कवर कर लेंगे। पहला ट्रांजैक्शन या पहला जो कैटेगरी की बात करता हूं कि अगर अरुण अमेजन के थ्रू सप्लाई कर रहा है और वो ट्रांजैक्शन मान लो, एक बार कहता हूं सर्विस का, फॉर द टाइमिंग आई एम सेइंग इट इज अ सर्विस, फॉर द टाइम बीइंग आई एम सेइंग इट इज अ सर्विस, सप्लाई ऑफ द सर्विस, and it is covered in the 9 subsection 5. 9 subsection 5 क्या है? 9 subsection 5 कहता है जब कोई ऐसे नोटिफाइड ट्रांजैक्शंस सर्विस वाले, कोई ऐसे नोटिफाइड सर्विस वाले ट्रांजैक्शन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से दिए जाते हैं, थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, in that case the e-commerce operator would be considered as a deemed supplier. यहाँ पे कितने ट्रांजैक्शन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे 9.5 की कैटेगरी के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? There are certain transactions which are covered in the 9.5 as a deemed supplier. Can you tell me the name? या तो ट्रांजैक्शन बता दीजिए या कोई एग्जांपल दे दीजिए। वो ट्रांजैक्शन जो 9.5 में कवर है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर डीम्ड सप्लायर है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है जीएसटी पे करने की। आई एम अवेटिंग योर आंसर सर, देन ओनली आई विल मूव। आंसर दीजिए। आई नीड टू सी द रिप्लाई ऑफ द सर्विसेज विच आर कवर्ड इन द 9.5। चैट मेरे को ही नहीं दिख रही, आ भी नहीं रही, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। सुमित जी? नहीं अरुण जी, अभी कोई किसी का रिप्लाई नहीं आया। चलो फिर हम एक दूसरे से देखते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 9 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? सेलिंग गुड्स थ्रू अमेजन? नहीं। 9 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? आज की तारीख में सिर्फ 4 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड हुई है। पहली कैटेगरी एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मोटर व्हीकल, मोटर कैब, मैक्सी कैब। तो एग्जांपल अगर समझूं तो मैं ओला या उबर की बात कर सकता हूं। दूसरा मेरा ट्रांजैक्शन है होटल अकोमोडेशंस। उसका आंसर क्या है? एग्जांपल के रूप में ओयो रूम समझ सकता हूं। तीसरा क्या है? स्मॉल कारपेंटिंग, प्लम्बिंग सर्विसेज एटसेट्रा which has been rendered through e-commerce operator, urban club, housekeeping, absolutely correct, housekeeping, plumbing, absolutely correct. एंड चौथा क्या है? चौथा तो रिसेंटली ऐड हुआ है, यस, जोमेटो। फोर्थ इज रिसेंटली एडेड जोमेटो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दैट कैटेगरी।
So we'll discuss in this particular e-commerce ka transaction, we'll separately discuss on any day. But I'm saying, suppose in these 4 category, if Arun is a say driver, or Arun is a housekeeping service provider, or Arun is a hotel owner, or Arun is owning a restaurant, if he provide the supply through these platform e-commerce operator, Arun would not be held responsible for GST, whether I am registered or not. Here there will be matter. I will provide the service through e-commerce operator, then e-commerce operator would be held responsible. So they will be the deemed supplier. So in this case, like Ola, Uber, Oyo Rooms, Urban Club, Zomato had to take compulsory registration, has to take compulsory registration. And where it is getting covered, and it is getting covered by this point, 4th number point. I hope it is clear. Now, second point. If you read the 9.5 and relevant these notification, I can say I can divide in 2 category. I can divide in 2 category. Category number one, which I will say Ola and Zomato, transportation of passenger and restaurant, irrespective of the status of the supplier, it will always be the responsibility of the e-commerce operator. Second, if it is a hotel, Oyo Rooms, or if it is a example of the Urban Club, if the supplier himself taken the registration by virtue of the section 22, threshold limit cross हो गई, supplier ने खुद ने registration ले लिया, तब mediator की responsibility नहीं रहेगी. They will not be considered as a deemed supplier in the 9.5. 4 कैटेगरी में 2 डिवाइड कर दीजिए, एक कैटेगरी सीरियल नंबर 1, एक कैटेगरी सीरियल नंबर 4. इनमें irrespective of the status of the supplier, who will be responsible? Always mediator. So therefore now अगर मैं रेस्टोरेंट हूं और मैं रजिस्टर्ड हूं, अगर मैं जोमेटो के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं, मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, क्योंकि उसके रिगार्ड में एक एक्सेप्शन है. नॉर्मली मैं रेस्टोरेंट हूं and I am making the supply through Zomato, whether I am registered or I am not registered, now I will not liable for any GST. Whatever supply I will give to Zomato, recently you can see the recent clarification also, that where I will report this transaction, it will be treated as exempt supply in my hand. I can give the bill to the Zomato, but that will not be taxable supply in my hand, because now the Zomato will give its own bill to the consumer by charging the GST. The situation till 31st December and on or after 1st Jan 2022, it has been changed. Now I am saying this category we have discussed. Now I am saying if I am making the supply through e-commerce operator, I am making the supply through e-commerce operator other than 9.5. Let's see the serial number 9. If I am making the supply of, now you can see that here it is goods and services both are written. Here goods and services both are written, but I can say after the notification 65, the word services is irrelevant. Now I can see that the serial number 9 is applicable only when the goods is being supplied through e-commerce operator. Like I'm making the supply the goods through Amazon, I have to take compulsory registration. Today we have seen one demand from the SME sector that if we are making the supply of the goods also through e-commerce operator, we should be relaxed not to take registration, because unnecessary there is a huge GST compliances burden accounting. So they have requested. Let's see what the response of the government. Now the third category in case of e-commerce. Now the third category in case of the e-commerce. Third category is TCS section 52. Section 52. Let's read that where it is. Serial number 10. Now in this case, if I'm making the supply of the goods through e-commerce operator, then first I have to take compulsory registration by virtue of the serial number 9. E-commerce operator has to take compulsory registration under the TCS category, tax collection at source. Tax collection at source. So they have to
take registration under TCS category, and they will collect the tax at the rate of 1%, 0.5 CGST, 0.5 SGST. They will collect the tax at the rate of 1%, and therefore they will also fall under the compulsory registration under the TCS category. So we are talking about 24/12 category, but these 12 category are not exactly only with respect to regular registration. You can take regular, or you can take ISD, you can take casual taxable person, you can take registration under non-resident taxable category, you can take registration under TCS category, TDS category. All are to be treated as GST registered person. So we have talked about 3 category for e-commerce. If e-commerce operator is a deemed supplier, he has to take compulsory registration. Second, if supply is made through e-commerce operator and other than 95, then TCS registration e-commerce operator ko lena padega. And third, if I am making the supply of goods through e-commerce operator, if I'm making the supply the goods through e-commerce operator, then yes, I have to take compulsory registration. Small category, casual taxable person, non-resident taxable person. If section 51, that is TDS, if I'm making the supply to the government, value is exceeding 2,50,000, when I issue the bill and total contract value, not necessarily single invoice or multiple invoice, not necessarily per annum. They are saying if the contract value exceed 2,50,000, government will deduct the TDS at the rate of 2%, and this TDS, for that TDS, they have to take compulsory registration. They have to take compulsory registration under which category? TDS category. Next, TCS category we have already discussed, and principal agent compulsory registration. ISD, so head office has taken has not taken any regular registration because head office is not making any taxable supplies, but he has some common credit for the branches. Then he can distribute that credit to the branches by using ISD mechanism. Name is input service distributor. It means only service can be distributed by this route, not the goods. Suppose there is a common services which is being taken care, which is being the bill is in the name of the head office, and that was in the benefit of the branches. So there is a rule 39. So according to that, I can distribute the credit. I can distribute the credit according to the turnover of the branches. Perfect. So ISD, if head office like to transfer the ITC to the branches, then they have to take compulsory registration. Serial number 9 and 10 I have discussed. 11th is important, but we all know. I am located out of India. Who am I? I am providing the service of OIDAR, Online Information Database Access Retrieval Services. So online gaming. So where maximum use of the internet, when the service is provided over the maximum use of internet, minimum human intervention. You can read the definition, and there is a flyer also to have the better understanding on OIDAR. Let's say I am GoDaddy, located out of India. When I'm providing the service in India to registered person, there is RCM. Recipient need to pay the tax under reverse charge mechanism. Now, if I am providing the service to unregistered individuals, then liability shifted to me, and I have to take compulsory registration by virtue of the serial number 24, clause 11. And clause 12 talks about any other notified category. So this is all about the registration, which I like to discuss right now. Now I will move to the next chapter, that is some scope of the supply. We can discuss half an hour on the particular section 7 of the CGST Act. If you have any question with respect to registration, you may ask, then I will switch after 2 to 3 minutes. I will start the supply chapter. If you have any question, requested to ask. Gauravji is asking, please explain 9.5.
सो 95 क्या है? सी अगर मैं सप्लायर हूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं ओला का, या मैं एक एग्जांपल लेता हूं डिसेंट कैटेगरी का जोमेटो वाला। मैं एक सप्लायर हूं, रेस्टोरेंट है मेरा, और मैं सप्लाई किसके थ्रू करता हूं? ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से, जोमेटो स्विगी। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू करके कहा कि जोमेटो जो मीडिएटर है उसको मैं डीम्ड सप्लायर मानूंगा, और जितने भी जीएसटी के प्रोविजन है वो जोमेटो के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ना कि होटल ओनर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? फाइन। अब क्या होगा, मतलब सप्लायर तो होटल ओनर ही है टू दी जोमेटो, एंड जोमेटो इज मेकिंग द सप्लाई। बट 1 जनवरी के बाद में जब उस कैटेगरी को नोटिफाई कर दिया तो क्या होगा, सप्लाई बाय द होटल ओनर टू द जोमेटो वुड बी कंसीडर्ड एज एग्जिम्प्ट सप्लाई, वुड बी कंसीडर्ड एज एग्जिम्प्ट सप्लाई। और जो जीएसटी का इनवॉइस है वो कौन बनाएगा? जोमेटो बनाएगा टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। थोड़े पार्ट पार्ट में समझा रहा हूं ताकि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तीसरा बात कहता है कि जब सर्विस 95 में कवर हो जाएगा तो वो जो टीसीएस का प्रोविजन है ना, 52 सेक्शन 52 जो टीसीएस की बात करता है, वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा उन ट्रांजैक्शन में जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद सप्लायर है। परफेक्ट। जीएसटी रिपोर्टिंग में जोमेटो या जो स्विगी है वो ट्रांजैक्शन एज इफ दे आर मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाईज, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन रेगुलर कैटेगरी में रखना होगा और वो टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। जैसा हम अभी तक रिपोर्ट करते थे जीएसटी रिटर्न में, मेरी आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 3B में 3.1 में कहीं दिखाता हूं मैं ए अगर टैक्सेबल सप्लाईज है, और जीएसटीआर 1 में टेबल 4, टेबल 5, टेबल 7 में दिखाता हूं। इन द सेम पैटर्न दे विल रिपोर्ट द सप्लाई नाउ एज इफ द जोमेटो इज ए सप्लाई। तो कहने का मतलब 95 में सिर्फ जोमेटो नहीं है, 3 और कैटेगरी, टोटल 4 कैटेगरी है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया, पहला ट्रांसपोर्टेशन वाली कैटेगरी ओला उबर, दूसरी कैटेगरी ओयो रूम्स, होटल अकोमोडेशन, एमएमटी, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप, गो आई वो। तीसरी कैटेगरी अर्बन क्लैब, स्मॉल कारपेंटिंग प्लम्बिंग सर्विसेज, और चौथी कैटेगरी रेस्टोरेंट। सो आई होप इट इज क्लियर। राधे, इफ सप्लाई मेड थ्रू Amazon will it be the turnover of Amazon? नहीं, जब 95 एप्लीकेबल होगा तो उसमें वो 95 में उसकी टर्नओवर काउंट नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल द ट्रांजैक्शन इज ऑफ, सॉरी मैं रिपीट करता हूं, आई एम सो सॉरी। अगर ट्रांजैक्शन 95 में कवर्ड नहीं है तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस के लिए लाइबल है, जो 1% काटता है, कलेक्ट करता है, उस केस में जो भी सप्लाई उसके थ्रू हो रही है वो मीडिएटर है, वो सप्लायर नहीं है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में वो चीज काउंट नहीं होगी, क्योंकि कहीं पे उसका पैन नंबर आएगा ही नहीं या जीएसटी नंबर कहीं आएगा नहीं। कहां पे आएगा? जो उसका कमीशन पार्ट है दैट विल बी एडेड ओनली। नाउ द सेकंड पार्ट, अगर वो मीडिएटर, अगर वो 95 वाली कैटेगरी में कवर्ड है, ऑब्वियसली यस इट विल बी काउंटेड। इज इट ओके? S Gupta sir has asked question, how and when can I transfer change reverse to forward? So when की अगर बात करूं, how can change? So simply he need to charge GST from 5 to 12. He will be converted into the forward. That's it. अब क्वेश्चन ये आता है, यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, क्या मान लो मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं, मेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली में भी है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा में भी है, क्या मैं डिफरेंट स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? दिल्ली के लिए फॉरवर्ड चार्ज और उसके लिए रिवर्स चार्ज, पॉइंट नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज मैं कुछ कस्टमर के लिए फॉरवर्ड और कुछ कस्टमर के लिए रिवर्स, ऐसा कर सकता हूं? या एक टाइम लिमिट के बाद में, कि पहले 3 महीने में रिवर्स में था और अब मैंने डिसाइड कर लिया नहीं, अब मैं 1 जुलाई से कंप्लीटली फॉरवर्ड में जाऊंगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? मेरे हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते, बट इफ यू आस्क मी, देयर इज नो डायरेक्ट कंडीशन, देयर इज नो डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन इज बीइंग देयर। देखो अगर हम बात करें ना गुप्ता सर, अगर हम कंपेयर करें इसको, एक कोई भी कंडीशन मान लो, लाइक ऑथर की बात करता हूं, सीरियल नंबर 9A की बात करता हूं रिवर्स चार्ज में। ऑथर में क्या है, वहां पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार आप ऑप्ट कर लिया तो आपका रिमेनिंग पार्ट आपका सेम रहेगा, पूरे साल भर के लिए आप रिवर्स में ही रहेंगे या फॉरवर्ड में रहेंगे। द सेम कंडीशन इज नॉट रिटन फॉर सीरियल नंबर 1 जीटीए के केस में। थोड़ा बहुत रीजन क्या है मेरा मना करने का? ये रीजन क्या है,
20 या 21वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी, उसके अगर प्रेस नोट को आप रेफर करोगे ना, जो प्रेस रिलीज, हालांकि मैं मानता हूं, एग्री करता हूं कि प्रेस रिलीज और या प्रेस नोट या रिकमेंडेशन नॉट द लॉ, बट वहां पे ये बात लिखी थी कि आप साल भर में चेंज नहीं करेंगे और एक बार ऑप्ट कर लिया, यू कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द रिवर्स और फॉरवर्ड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। अदरवाइज क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरा दिल्ली में बिजनेस है, मेरा हरियाणा में बिजनेस है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को डिफरेंट स्कीम ऑप्ट करने का मौका मिल गया ना, तो जितनी भी असेट होगी मैं हमेशा हरियाणा के जीएसटी नंबर पर परचेस करूंगा, ताकि वहां पूरा आईटीसी मिल जाएगा, और जो भी आरसीएम का ट्रांजेक्शन है मैं दिल्ली से करूंगा। So that will be the problem. That can be the problem which I can see. But however, I'm again repeating that direct restriction कहीं नहीं लिखे to the best of my understanding. But अगर आपको मालूम है तो आप definitely share कर सकते हैं for the benefit of all the stakeholder. Requirement नहीं है ना। अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो अतुल जी, मैं कहता हूं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन दे रहा हूं, ठीक है ना, वो सीरियल नंबर 21 वाली कैटेगरी जो 7 या 8 कैटेगरी लिखी हुई है, ठीक है ना, वो या सीरियल नंबर 21A वाली कैटेगरी, अगर मैं उस टाइप के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हूं तो मेरा ट्रांजैक्शन क्या एग्जेम्प्ट है, irrespective of my turnover, I'm not required to take registration by virtue of section 23. ठीक है गुप्ता जी, काउंटर क्वेश्चन, अतुल जी कोई काउंटर क्वेश्चन? शुड आई मूव टू द सप्लाई चैप्टर? फाइन, 1 मिनट का ब्रेक देना मेरे को, सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक देना, विल स्टार्ट आफ्टर 1 मिनट। So now we are talking about GST taxable event supply. Sir, what about section 25 to 30? Sir, सभी cover नहीं हो सकता गौरव जी, everything cannot be covered, so that is the reason. So I have covered 22, 23, 24. Fine, but मैं अपना जो notes दूंगा ना, उसमें सारे सब कुछ cover होंगे. You can have the reading on the entire chapter. So उसमें 25 बाकी सारे cover है, उसमें सभी चीज cover है. GST taxable event, supply of the goods or services or both. ठीक है. So prima facie I can say अगर मेरा ट्रांजेक्शन गुड्स का है या सर्विसेज का या दोनों का है तो मेरा, और अगर ट्रांजेक्शन मेरी सप्लाई है तो वो ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा। गुड्स का मतलब, अगर मैं गुड्स की डेफिनेशन कहता हूं, देखूं तो ये कहता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मनी और सिक्योरिटी हटा दीजिए, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी के, तो वो ट्रांजेक्शन गुड्स होंगे। यहाँ पे कुछ इंक्लूड किया गया, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्री टू बी सीवर बिफोर द सप्लाई और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। कोई चीज फिक्स अटैच थी और उसके बाद मैं सेल करने के पहले उसको सेपरेटली हटा के सेल करता हूं तो वो ट्रांजेक्शन गुड्स माना जाएगा। सिमिलरली एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स है, बट हाउएवर एक्शनेबल क्लेम आर कवर्ड इन द शेड्यूल 3 एंड देयरफॉर इट इज नॉट लायबल टू जीएसटी, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ के। तो अगर मैं बात करूं गुड्स में क्या क्या चीज कवर नहीं है, तो मैं एक तो कह सकता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं है, और दूसरा मनी कवर नहीं है, और तीसरा सिक्योरिटी कवर नहीं है। अब हम बात करते हैं सर्विस की। सर्विस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और ये कहती है जो भी चीज गुड्स नहीं है वो सर्विस है, मनी एंड सिक्योरिटी, इनको भी हटा दो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मनी एंड सिक्योरिटी ऐसे दो कॉमन आइटम है, मनी एंड सिक्योरिटी ऐसे दो कॉमन आइटम है विच इज, अगर मेरा पॉइंट ये है कि आइटम विच आर नाइदर गुड्स नॉट सर्विसेज, तो मेरा आंसर क्या होगा, मनी एंड सिक्योरिटी। तो मनी और सिक्योरिटी ऐसे दो कॉमन आइटम है जो ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है। एक बार सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रवि प्रकाश जी, तो हमें समझ में आ जाएगा।
ठीक है, सिक्योरिटी को लिंक कहां से किया, वही सिक्रा से, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से। इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव that have been explicitly excluded from the purview of the GST by virtue of the exclusion given in the definition. So in my point, whether it is for listed company or it is unlisted company, both are covered in the definition of security. And उसके बाद में अगर मैं पॉइंट ये कहूं कि activity of the transaction which is neither supply of the goods nor supply of the services, activity of the transaction which is neither supply the goods nor supply the services, अब मैंने क्या वर्ड ऐड किया, सप्लाई वर्ड ऐड कर दिया। ऊपर जो मेरा पॉइंट था वो ना तो गुड्स है ना ही सर्विसेज, तो आंसर क्या था, मनी एंड सिक्योरिटी। अब मैं कह रहा हूं ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो मेरा आंसर क्या होगा, शेड्यूल 3 प्लस नोटिफिकेशन विच हैज बीन इश्यूड। आज की तारीख में 2 नोटिफिकेशन इश्यू है, 2 कैटेगरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मैं नॉन टैक्सेबल की बात नहीं कर रहा हूं। नॉट मार्केटेबल, सो नॉट कवर्ड। मैं रवि प्रकाश जी एक बार मैं इस पॉइंट को कॉपी कर लेता हूं और चेक करके मैं अपना व्यू दे दूंगा। सुमित जी के साथ आप फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। आई विल शेयर माय व्यू इन अ डे और 2। इस पॉइंट के रिगार्ड में जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी आई विल डेफिनेटली शेयर फ्रॉम मार्केटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं सो दैट इट वुड बी इजी फॉर मी टू रिमेंबर द क्वेश्चन। अब सेक्शन 7 सभी को मालूम है, डेफिनेशन है सप्लाई का, इंक्लूसिव पैटर्न में है। मतलब डेफिनेशन नहीं कह सकता, इंक्लूसिव पैटर्न में इस वर्ड को डिफाइन किया गया है। मतलब क्या है, सप्लाई इंक्लूड दीज थिंग्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ द सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल एटसेट्रा, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। 2 इंपॉर्टेंट पिलर क्या हो गए, एक तो मेरा ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन होना चाहिए और दूसरा मेरा ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक अब्सेंस है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं हो सकता, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। हालांकि दोनों का एक एक एक्सेप्शन है, दोनों का एक एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन फॉर कंसिडरेशन क्या है कि अगर मैं कोई सर्विस जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में, क्लॉज सी कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में डिफाइंड है तो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। वो कौन से ट्रांजैक्शन है सर, वो 4 ट्रांजैक्शन है भाई। अगर शेड्यूल 1 की बात करूं, देयर आर द 4 एक्टिविटी व्हिच आर कवर्ड इन द शेड्यूल 1। टाइम मिलेगा तो हम उसको भी रेफर कर लेंगे। और अगर बिजनेस की बात करूं, और बिजनेस में क्या एक्सेप्शन है सर, बिजनेस में एक्सेप्शन क्लॉज बी है। यहां पे क्या है, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं उसमें कंसिडरेशन है, then doesn't matter it is for the purpose of the business or it is for the purpose of other than business, it doesn't matter that whether it is in the course or furtherance of the business or not, transaction supply माना जाएगा। अब सप्लाई माना जाएगा तो टैक्स कौन पे करेगा, या तो सप्लायर पे करेगा या रिसिपिएंट पे करेगा। अगर वो ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज में है तो रिसिपिएंट पे करेगा, अगर वो ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड चार्ज में, अगर आरसीएम नहीं है तो ऑब्वियसली सप्लायर पे करेगा। बट यस, अगर सर्विस इंपोर्ट है और उसमें कंसीडरेशन है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाएगा। कैन से from some point of view I can say that you can correlate with the example which we have discussed of GoDaddy। अगर GoDaddy किसी रिसिपिएंट इंडियन पर्सन को अपने पर्सनल पर्पस के लिए भी कोई ट्रांजैक्शन देता है तो भी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस और नॉट। अगर ये बिजनेस होगा, रिसिपिएंट के एंगल से चेक करना कि अगर वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन है तो आरसीएम देगा, अगर वो पर्सनल ट्रांजैक्शन है देन मोस्टली it can be shifted to the supplier, liability can be shifted to the supplier provided it is OIDAR category। other than OIDAR category में वो ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर 10 ऑफ एग्जिम्पशन नोटिफिकेशन वो कवर हो जाएगा और वो ट्रांजैक्शन एग्जिम्प्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं बहुत डेंजर चेंजेस, सभी को मालूम है। क्लब एंड एसोसिएशन जो मेंबर के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं उसको रेट्रोस्पेक्टिवली
टैक्सेबल बना दिया सप्लाई कहते हुए। और क्या बोला गया है एक्सप्लेनेशन, सो पहले हम क्लॉज डबल ए पढ़ लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ द ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। For the purpose of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment or any decree or any order of any court, we all know by क्या उनका एंगल है, किस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, कैलकाटा क्लब एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट था सभी को मालूम है कि आफ्टर दैट जजमेंट देयर वाज ए कंट्रोवर्सी कि भाई जीएसटी भी एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा, एंड आफ्टर दैट दे हैव मेड द अमेंडमेंट। एंड प्रॉब्लम क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। अब सोचिए आज किसी क्लब ने जो आज तक टैक्स नहीं पे किया वो पीछे 4 साल का टैक्स पे करेगी आज। एंड मेंबर मान लो एलिजिबल है आईटीसी के लिए, तो क्या वो आईटीसी ले सकता है? अगेन फिर वो क्वेश्चन होगा 16(4) का एलिजिबिलिटी, 16(4) का जो टाइम लिमिट है। सो मच कंट्रोवर्सी इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नॉट एडवाइजेबल ऑलवेज, पर एज ऑफ नाउ सिचुएशन यही है। फ्यूचर टाइम बताएगा कि इसकी जो लीगलिटी है वो कितने हद तक है। आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी ऑफ द पर्सन टू इट्स मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी द टू सेपरेट पर्सन। इट मींस जो कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी को एक्सप्लेन किया था कैलकाटा क्लब के केस में, कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी जो टर्म बोला कि मेंबर एंड द क्लब would not be the separate person, they would be the same person, and therefore the transaction between them cannot be liable to service tax. We were of the assumption, all were having the same view that the same will flow to the GST regime also, and therefore the transaction between the club and the member cannot be taxable. But now what is the position? It is taxable as of now. एंड जब ये ट्रांजैक्शन बना है तो उन्होंने एक शेड्यूल 2 में एक एंट्री को डिलीट कर दिया कि वो उससे रिलेटेड थी, तो अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आगे आता हूं मैं, एक सेकेंड। व्हाट अबाउट थ्रेशोल्ड लिमिट इन दिस केस? वो तो हमेशा ही रहेगा ना, 20 लाख और 40 लाख की बात कर रहे हैं आप, राइट? वो तो हमेशा ही रहेगा। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे का ट्रांजैक्शंस है तो आउट ऑफ जीएसटी होगा ही होगा। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तभी लेना पड़ेगा जब वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा। ट्रांजैक्शन को सप्लाई बना दिया, नीड टू चेक द रिक्वायरमेंट फ्रॉम सेक्शन 22 एंड इफ इट इज क्रॉस देन ओनली यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन एंड चार्ज द जीएसटी। तीन शेड्यूल का रेफरेंस है, शेड्यूल 1 सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, एंड शेड्यूल 2 सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, एंड शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट या नो सप्लाई। अब अगर आप शेड्यूल 3 की बात करेंगे, ये 7(2) में कवर है। 7(2) में क्लॉज ए कहता है शेड्यूल 3, और क्लॉज बी क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो वो ट्रांजेक्शन क्या है, आउट ऑफ जीएसटी होगा। एक्टिविटी शैल बी ट्रीटेड नाइदर सप्लाई द गुड्स नॉर सप्लाई द सर्विसेज। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, नोटिफाइड। तो आज तक 2 नोटिफिकेशन आए हैं, रेदर आई शुड से 3 नोटिफिकेशन। एंड पहले 2 नोटिफिकेशन को अगर मैं जॉइंटली रीड करूं तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 243W और आर्टिकल 243G पंचायत या म्युनिसिपैलिटी वाले जो काम है, वो जो सर्विस है वो आउट ऑफ जीएसटी होगा। एंड दूसरा जो अगर मैं नोटिफिकेशन का बात करता हूं तो वो कहता है कि एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस, जो एल्कोहलिक लीकर आउट ऑफ जीएसटी है पर लीकर लाइसेंस आउट ऑफ जीएसटी नहीं था, वो टैक्सेबल हुआ करता था। उन्होंने सितंबर 2019 ऑनवर्ड्स, मतलब 1 अक्टूबर 2019 से इसको 7(2) में क्लासिफाई कर दिया, मीनिंग देयर बाय नाउ इट इज कवर्ड इन द नेगेटिव लिस्ट। कंसीडरेशन के डेफिनेशन में हटा रहा हूं एक बार, बिजनेस के डेफिनेशन में एक बार नहीं डिस्कस कर रहा। मैं एक बार इन 4 आइटम को डिस्कस कर लेता हूं, 4 एक्टिविटीज को डिस्कस कर लेता हूं व्हिच आर कवर्ड इन द शेड्यूल 1। सो शेड्यूल 1 क्या कहता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आईटीसी हैज बीन टेकन। अगर मैंने कोई असेट के ऊपर आईटीसी लिया है और अगर फ्री में भी किसी को दे देता हूं तो वो जो फ्री का ट्रांजेक्शन है वो भी जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे कहता हूं कि जो अंडरलाइन और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि आपने आईटीसी लिया या नहीं लिया।
सो अगर मैं दो एग्जांपल जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं कि मान लो मैंने कार परचेज की डायरेक्टर के लिए, क्या वो उसकी आईटीसी मिलेगी? नहीं। और कार को मैं मान लो 2 साल बाद एनजीओ को डोनेट करता हूं, क्या ये परमानेंट है? यस, परमानेंट ट्रांसफर है, डिस्पोजल है बिजनेस एसेट का, लेकिन क्या आईटीसी ली थी? नहीं ली थी। तो ये जो फ्री में कार दे रहा हूं, ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं होगा जीएसटी में। अब दूसरा एग्जांपल कि मैंने कंप्यूटर लिया था और कंप्यूटर का जीएसटी लिया था, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। अब वो कंप्यूटर मैं फ्री में एनजीओ को डोनेट करता हूं, क्या ये जो फ्री का ट्रांजेक्शन है जीएसटी में टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मैंने आईटीसी लिया था। तो सर क्या वैल्यू पे होगा? तो वैल्यू के लिए आपको रूल 27 रेफर करना पड़ेगा, रूल 28, वहां पे काफी रूल है, रूल 27 टू रूल 31 यू नीड टू रेफर। पहली बात ओपन मार्केट वैल्यू कहता है, उसके बाद में लाइक एंड क्वालिटी, कॉस्ट प्लस 10%, रेसिडुअल मेथड, बहुत सारे मेथड है जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है या कुछ भी नहीं है, देन ट्रांजैक्शन आई कैन से ओपन मार्केट वैल्यू पे टैक्सेबल होगा। हालांकि अगर ज्यादा डिटेल में जाना तो आप रूल 27 को रेफर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वन मोर थिंग व्हिच वी नीड टू कंपेयर, सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जब भी हम कोई कैपिटल गुड्स को सप्लाई करते हैं, जब भी हम कभी किसी कैपिटल गुड्स को सप्लाई करते हैं, करेक्ट, तो वो जो कैपिटल गुड्स है तो उसका एक कंपैरिजन करना होता है। ट्रांजैक्शन नॉर्मली क्या कहता है सेक्शन 15 कि 15 कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द टैक्सेबल वैल्यू। नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, अभी मैं स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 1 की बात नहीं कर रहा। ट्रांजैक्शन वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू है, लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका कैपिटल गुड्स का है इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी और कैसा आइटम जिसके ऊपर आपने आईटीसी लिया था, तो 18(6) कहता है कि आपको दो वैल्यू कंपेयर करके उसके ऊपर जो हायर है वो देना पड़ेगा। कौन सी दो वैल्यू? एक तो टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, और दूसरा मैं कह सकता हूं अगर असेट 5 साल के पहले मैं सेल करता हूं, कोई भी असेट, जीएसटी में लाइफ कितनी है? रूल 44 कहता है कि 5 साल है, रीड विद रूल 40 एंड 44। लाइफ कितनी है? 5 साल है। अगर मैं किसी भी असेट को 5 साल के पहले सेल करता हूं तो वो क्या है सेल, तो आपको 18(6) का कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कम से कम ऐसा तो नहीं है कि आपने आईटीसी ज्यादा ले लिया और जो आप सेल वैल्यू बता रहे हो इतनी कम है कि आप कुछ अननेसेसरी एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कर रहे हो। करेक्ट। तो 18(6) कहता है कि आप कितनी आईटीसी ली, 5 साल तक एलिजिबल थे, कितना साल आपने यूज किया, बाकी बैलेंस जो आईटीसी है वो एक्सेस आईटीसी है, आइदर ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जो टैक्स है या जो एक्सेस आईटीसी है, whichever is higher you need to pay the GST. That things always you need to compare, because normally क्या होता है कंप्यूटर के केस में, स्पेसिफिकली लैपटॉप के केस में, हर एक कंपनी की पॉलिसी होती है वो 4 साल के बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उस टाइम क्या जीएसटी देना पड़ेगा? इक्विवेलेंट 1 ईयर का आईटीसी तो कम से कम देना पड़ेगा। मान लो कंप्यूटर हमने डिस्पोज ऑफ किए, किसी इलेक्ट्रिक ई वेस्ट वालों को दिए और हमें एक नॉमिनल अमाउंट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल नॉमिनल अमाउंट मिल रहा है, फिर भी उस नॉमिनल अमाउंट के ऊपर जितना जीएसटी है और 1 साल का आईटीसी व्हिचएवर इज हायर यू नीड टू पे, दैट थिंग्स यू ऑलवेज नीड टू कंपेयर। रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स इनवॉइस आरसीएम बेसिस, यस इट इज राइट, एब्सोल्युटली सुरजीत जी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है, हालांकि अब तो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है इस पॉइंट के रिगार्ड में, लेकिन फिर भी ध्यान रखना यहाँ पे सर्विसेज भी कवर्ड है, क्योंकि पहला पैरा जो था वो सिर्फ परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट की बात करता, गुड्स की बात कर रहा था, बट यहाँ पे ये कहता है सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन वी ऑल नो दैट वन पेन मल्टीपल जीएसटीआई, और रिलेटेड पर्सन इसकी डेफिनेशन दी हुई है एक्सप्लेनेशन में सेक्शन 15 के। तो अगर आप रिलेटेड आदमी या डिस्टिंक्ट आदमी को सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज, तो वो ट्रांजैक्शन अगर फ्री का भी है तब भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। If you are doing the transaction, whether it is a goods or services, you need to pay the GST। किसको दे रहा हूं मैं, या रिलेटेड को या डिस्टिंक्ट को, बिकॉज इसमें डिस्टिंक्ट ऐड है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मान लो मेरा एक हेड ऑफिस मुंबई में है और मेरी ब्रांचेस राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह ब्रांचेस। अब कॉमन सर्विसेज होती है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट की बात कर लेता हूं, डायरेक्टर तो एक ही होंगे ना, वो डायरेक्टर दे विल लुक आउट द फंक्शन ऑफ मुंबई, दे विल लुक आउट द फंक्शन ऑफ एवरी ब्रांचेस।
टैक्स टीम एक ही होगी, अकाउंट की टीम एक ही होगी, एचआर कंप्लायंसेस की टीम एक ही होगी, हर ब्रांच में एक या दो आदमी होंगे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के, बट जो मेजर कंप्लायंसेस है दैट विल बी टेकन केयर बाय द हेड ऑफिस। और जीएसटी के बाद में तो ये हुआ ही है, अगर जीएसटी के बाद में देखोगे वर्क तो कंसोलिडेट हो गया, हर जगह जो पहले कंप्लायंस टीम और कंसल्टेंट अलग अलग हुआ करते थे अब सब सेंट्रलाइज्ड हो गया, क्योंकि जीएसटी का लॉ तो एक ही है। इन दैट केस will it be covered in the schedule 1 para 2 by saying that it is a supply the service by one GST number, that is Mumbai, to the another GST number, that is say Delhi branch? It is the support services, tax compliance services. Can we say? And if we say, then it will be covered by the schedule 1 para 2. क्या बेस होगा? Apart from salary there cannot be any base. अगर इन हाउस कोई टीम है, अगर वो दे रही है तो सिर्फ बेस क्या होगा? मेरे हिसाब से बेस सिर्फ सैलरी होगी, एंड सैलरी पर से इज कवर्ड इन द नेगेटिव लिस्ट, शेड्यूल 3 का पहला आइटम। मैं उसके एलोकेशन को जीएसटी में टैक्सेबल नहीं बना सकता। सो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। एंड गुड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर गुड्स वहां से यहां आता है तो मैं जानता हूं स्टॉक ट्रांसफर बिकम टैक्सेबल इन द जीएसटी। वैल्यूएशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और एक वो रूल 28 का सेकंड प्रोवाइजो है कि उस केस में मैं कोई भी वैल्यू लगाऊं तो माना जाएगा ये ओपन मार्केट वैल्यू है। एक प्रैक्टिस चल रही है मार्केट में विच यू कैन फॉलो और विच यू कैन नॉट फॉलो, योर चॉइस। क्या करते हैं, साल खत्म होने के बाद में एक इंटर ब्रांच है ना, एक सर्विस का इनवॉइस रेज करते हैं, बिजनेस सपोर्ट सर्विस, कोई भी वैल्यू से 50,000 का कर दिया। क्यों कोई भी वैल्यू? बिकॉज ऑफ द रूल 28 सेकंड प्रोवाइजो। As of now, till the time there is no clarity, they are handling in this manner. But whether it is correct or not correct, cannot comment. But there has to be some clarity, which is not yet. अब यहां पे एक रिलैक्सेशन है, अगर गिफ्ट 50,000 तक का है एक फाइनेंशियल ईयर में एक एम्प्लॉयर के द्वारा एक एम्प्लॉय को, तो वो ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं माना जाएगा। यहाँ एक छोटा सा कंपैरेटिव स्टडी बता देता हूं मैं आपको, which would be really helpful for मतलब which would be helpful in the day to day transactions. अब एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देना, मैं अगर अपने एम्प्लॉय को एज्यूम करता हूं एक मोबाइल देता हूं, आईफोन दे रहा हूं मैं मान लो, और उसकी वैल्यू 70,000 है, क्या ये जीएसटी में टैक्सेबल होगा? क्या मुझे उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? मैं रिपीट करता हूं, दिवाली के ओकेजन पर मैं अपने एम्प्लॉय को, हर एक एम्प्लॉय को मैं 70,000 का मोबाइल गिफ्ट कर रहा हूं, विल इट बी टैक्सेबल? आंसर वुड बी यस, इट विल बी टैक्सेबल, बिकॉज 50,000 तक का तो रिलैक्सेशन है। अब वो ट्रांजेक्शन टैक्सेबल हो गया, क्या मैं गिफ्ट का आईटीसी ले सकता हूं? क्या मैं गिफ्ट का आईटीसी ले सकता हूं? मैं गिफ्ट की आईटीसी ले सकता हूं? अगर मैं कोई चीज को गिफ्ट में दे रहा हूं, कैन आई टेक द आईटीसी? यहां पे अगर मैं 17(5)H को रेफर करूं, एक सेक्शन है ब्लॉक क्रेडिट का 17 सबसेक्शन 5, वी ऑल नो, एंड वहां पे क्लॉज एच कहता है कोई भी मैं आइटम गिफ्ट फ्री सैंपल में देता हूं तो उसकी आईटीसी नहीं ले सकता। लेकिन इस दोनों कॉम्बिनेशन को सर्कुलर 92 में कवर किया। वो कहता है कि अगर आपकी आउटपुट ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है जीएसटी में, इवन बाय वर्च्यू द शेड्यूल 1, फ्री का ट्रांजेक्शन है बट टैक्सेबल हो गया बाय वर्च्यू द शेड्यूल 1 बिकॉज ऑफ एनी पैरा, तो आप अपने इनवर्ड ट्रांजेक्शन का आईटीसी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Para 3, these are, it is the definition of or I can say the meaning of related person. Explanation A to section 15, officer or director, legally partner, employer or employee, and that is the main problem. Employer employee के transaction को भी related party transaction माना जाएगा, और ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कि कैंटीन फैसिलिटी दे रहा हूं मैं अपने एम्प्लॉय को और सब्सिडाइज रेट पे दे रहा हूं।
मान लो 100 रुपीज मेरी कॉस्ट है पर थाली की, मैं ओनली 20 रुपीज कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। आई थिंक थोड़ा लेट आ रही है रिप्लाई, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ, मे बी ना वेबिनार की क्लास में हो सकता है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि मैं अपने एम्प्लॉय को सब्सिडाइज रेट पे खाना दे रहा हूँ, ठीक है, कैंटीन की फैसिलिटी दे रहा हूँ, कितना चार्ज कर रहा हूँ, 20 रुपए। तो पहला पॉइंट, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। पहला पॉइंट क्या, ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होगा? सो मोरलेस आई शुड से नो, बट यस इट इज बीइंग टैक्स्ड इन द सर्टेन एडवांस रूलिंग आर सेइंग इट इज टैक्सेबल। और कुछ पॉजिटिव भी है कि जिसमें कहते हैं कि नहीं, ये कैंटीन फैसिलिटी सप्लाई नहीं है तो इट शुड नॉट बी टैक्सेबल। अगर मान लो कहता हूं कि सप्लाई है, तो सप्लाई 20 रुपए की 100 रुपए, सप्लाई कितना, 20 रुपए की 100 रुपए, आंसर इज 100 रुपए, आंसर इज 100 रुपए। क्यों? रूल 28 कहता है जब ट्रांजेक्शन आप डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के साथ कर रहे हो ना, तो आप ट्रांजेक्शन वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू नहीं मान सकते। भाई ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना है, जितना मैं 20 रुपए कलेक्ट कर रहा हूं, विल इट बी टैक्सेबल वैल्यू? 15 सबसेक्शन 1 कहता है कि नहीं, दो केस में आप जिस वैल्यू पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो इग्नोर करना पड़ेगा। वन, इफ द रिसिपिएंट इज द रिलेटेड पर्सन, एंड सेकंड, अगर वहां पे 100% मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं एम्प्लॉय को सब्सिडाइज रेट पे कैंटीन की फैसिलिटी दे रहा हूं, पहला पॉइंट तो ये सप्लाई नहीं है, तो ये टैक्सेबल ही नहीं होगा। लेट से अगर इसको सप्लाई मान लेते हैं, तो क्या ये 20 पे टैक्सेबल होगा या 100 पे? आंसर इज 100 रुपीज ओपन मार्केट वैल्यू। Whether gift to an employee will not be covered as a salary? अगर मेरा पार्ट एंड पार्सल ऑफ सीटीसी है, से गिफ्ट क्या होता है, वॉलंटरी होता है, ओकेजनली होता है, और कंपल्सन नहीं होता। और सैलरी क्या कंपल्सन है। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि मैं गिफ्ट दूं या ना दूं, ये मेरी इच्छा है, ठीक है ना। बट सैलरी क्या है, जो कि मेरे कॉस्ट कंपोनेंट में लिखी हुई है, जो हर महीना मुझे देनी देनी है। सो इन माय व्यू गिफ्ट वॉन्ट बी ट्रीटेड एज ए सैलरी। माइट बी यू आर कंसिडरिंग इनकम टैक्स पर्पस के लिए, बट नॉट फॉर जीएसटी, बिकॉज बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हैं जहां पे ट्रीटमेंट अंडर द जीएसटी एंड ट्रीटमेंट अंडर द इनकम टैक्स आर डिफरेंट। पूजा जैन, यस, जीएसटी ऑन द होल अमाउंट और एक्सीडिंग 50,000 कंप्लीट अमाउंट पे, पूरे 70 पे टैक्सेबल होगा। प्रोवाइजो कहता है कि अगर 50 तक है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। क्या मैं उस प्रोवाइजो में कवर हूं? क्योंकि मेरा वैल्यू 70 है, तो आंसर वुड बी एंटायर वैल्यू वुड बी टैक्सेबल, एंड एब्सोल्युटली गिवन द करेक्ट आंसर बाय सीएस श्रुति महेश्वरी। Any person directly or indirectly own or control, one of them directly or indirectly control the other, together they directly or indirectly control. उसके बाद में ये मैंने दोनों एग्जांपल कवर करवा लिए, स्टॉक ट्रांसफर भी कवर करवा लिया, और आईटी एचआर सर्विसेज को भी मैंने डिस्कस कर लिया। नाउ द पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 टॉकिंग अबाउट, अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को दे रहा है, जहां पे एजेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है, या एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है जहां पे एजेंट क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा गुड्स का, दैट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। एंड अभी आपने हम देखा था कि सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में फॉल कर रहा है प्रिंसिपल और एजेंट। लास्ट फॉर द डे, अगर कोई सर्विस इंपोर्ट है, पहले यहां पे वर्ड था बाय ए टैक्सेबल पर्सन, और बाद में इस टैक्सेबल वर्ड को रिमूव किया था 1 फरवरी 19 से। तो मतलब क्या हुआ, अगर कोई सर्विस इंपोर्ट की जा रही है, भले वो इंपोर्ट करने वाला जो इंडियन पर्सन है, भले वो टैक्सेबल है, भले वो रजिस्टर्ड है, या भले वो खाली पर्सन है, किससे कर रहा है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। आउट ऑफ इंडिया में जो पर्सन, जो एंटिटी उसको सप्लाई कर रही है सर्विस का ट्रांजेक्शन, वो कौन है, या तो वो रिलेटेड है, या एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, एंड वो ट्रांजेक्शन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है। अगर ऐसा होता है तो वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 के कारण टैक्सेबल होगा, and it will be covered by the it will be treated as a supply even without consideration. So मैं आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट करना चाहूंगा। So it was supposed to be till 8 o'clock, but because की नेक्स्ट क्लास है तो मैं 7:35 पे क्लोज कर रहा हूँ। सुमित जी, आई एम एक्सट्रीमली conveying my regard and sorry because I would not be extend till 8 o'clock. But yes, I request every participant to ask any question if you have. कोई भी क्वेश्चन है, हम आराम से 5-10 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं फॉर एनी क्वेश्चन।
I think Arunji, wonderful. You have covered entire the topic and well in time. And now open floor for any questions from the audience. Sure. Any question from participant you can ask right now, or you can. एक क्वेश्चन रवि प्रकाश जी का जो मैं बाद में कवर करूंगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा इन ए डे और टू. एंड थैंक यू, वेलकम. Pooja Jain ji. Okay, fine, no problem. Any other participant have any question? Kindly post. रवि प्रकाश जी का पेंडिंग है, पूजा जैन जी. ओके. आई थिंक अरुण जी, जो आपके लेक्चर से समझ आया कि जीएसटी जितना सिंपल गुड एंड सिंपल टैक्स था, उतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है आज की डेट में. कह ही नहीं सकते सर. नीड टू रिफ्रेश एवरी ईयर. थैंक यू विनीत जी. ये लेनोवा एक क्वेश्चन रह गया है मेरे पास में, नहीं दिखाई दिया मुझे. कुछ है? हाँ, जस्ट एक मिनट. इज द रेट ऑफ जीएसटी ऑफ जीटीए अंडर आरसीएम एंड एफसीएम आर सेम? एक बार क्वेश्चन पोस्ट कर देंगे या ऊपर है क्वेश्चन? हाँ, जस्ट ऊपर हो गया है. अच्छा, इट इज डायरेक्टली टू मी. ओके 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 ओके. एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे. बाय मिस्टेक है. Is the rate of the GT under RCM और FCM are same? See, सेम नहीं है. अगर RCM की बात करूं, देखो अगर मैं रेट की बात करता हूं ना जीटीए के केस में, तो 5% और 12% दोनों रेट है. पहली बात. अब दूसरा बात क्या है कि सर जब मैं आरसीएम के नोटिफिकेशन को देखता हूं, वो जो 13/2017 है सर्विस के केस में, ठीक है ना, उसका जो पहला सीरियल नंबर है वो कहता है कि अगर जीटीए ऑप्ट करना चाहता है फॉरवर्ड, तो उसके लिए एक ही रेट फिक्स कर दी 12% है. तब इसके कारण प्रॉब्लम आ गई कि आरसीएम में तो रेट 5% पे करके मैं आईटीसी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए जाना चाहता है तो कंपल्सन क्या है, 12 ही चार्ज करना पड़ेगा उसको. No such condition. Transporter under RCM, any condition when he take GST? No condition. Notification number 5/2017, 19 जून का नोटिफिकेशन है जिसमें रिलैक्सेशन था. मैं जो 23(2) के मल्टीपल नोटिफिकेशन की बात कर रहा था, उसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन 5/2017 है, ठीक है ना, वो जून 2017 में ही आ गया था. कहता है अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम है, एक्सक्लूसिवली कवर्ड अंडर आरसीएम है, आप आउट ऑफ जीएसटी, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अरुण जी, ये क्वेश्चन छूट गया श्रुति महेश्वरी का. हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ बीच में. गुप्ता जी का वो रिलेवेंट था, इसलिए मैंने उनको पहले आंसर कर दिया. श्योर. वेदर आईटीसी कैन बी टेकन ऑन द गिफ्ट मेड टू एजेंट इन फर्दरेंस द बिजनेस. बड़ा सी प्रॉब्लम क्या है श्रुति जी? प्रॉब्लम है कि डिपार्टमेंट आपको इजीली अलाउ नहीं करेगा आईटीसी. सो मैं अगर देखूं तो एक्चुअली ये गिफ्ट नहीं है, ये मेरा बिजनेस प्रमोशन है. सी मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने एजेंट को मैं टारगेट देता हूं, अगर वो टारगेट अचीव कर लेते तो मैं कुछ आइटम देता हूं. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अगर आप 1 करोड़ की सेल अचीव कर लोगे तो आई विल गिव द 1 रेफ्रिजरेटर, 1 एयर कंडीशन. देन इन दैट केस आई कांट से दैट आई एम गिविंग गिफ्ट और फ्री सैंपल, क्योंकि वो ये कोई वॉलंटरी नहीं है, ये सभी के लिए नहीं है, ये सेल्स बेसिस पे है. तो मेरे हिसाब से आईटीसी मिलना चाहिए, बट लिटिगेशन वाला मैटर होगा. अगर अमाउंट साइजेबल है एंड रेडी टू लिटिगेट, देन डेफिनेटली टेक आईटीसी. और उस केस में क्या सजेशन हो सकता है? वी ऑल नो आफ्टर 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जो रिकमेंडेशन था कि अगर कोई इनएलिजिबल आईटीसी है, वो अगर खाली लेजर में पड़ी है, मैंने यूज नहीं की, रिवर्स कर दो बिना इंटरेस्ट के. तो इस केस में क्या है, गिफ्ट का आईटीसी ले लो, यूटिलाइज मत करो अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, कीप रिमेन एज इट इज इन योर लेजर, एंड whenever the matter is for example adjudicated, assessment में हाईलाइट होता है, तो फाइट कीजिए. फाइनली अगर आपके फेवर में आता है तो आप इसको यूज कर लीजिए, नहीं आता तो रिवर्स कर दीजिए, इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं लगेगा. इफ सुरजीत जी का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं. इफ मैन इन कैलकाटा, if Mr. Sen is in Calcutta traveling train to Mumbai, when he reach Odisha, he recharge mobile internet. So in this situation, GST applicable? He recharge mobile. GST तो applicable ही होगा, क्या फर्क पड़ता है? आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जीएसटी कौन सा होगा? इज इट राइट? इट कैन बी. हाँ, कौन सा जीएसटी होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा कि आईजीएसटी होगा? सी लैंडलाइन के केस में क्या होता है, सी अगर मैं 12(9) की बात करता हूँ, 12 सबसेक्शन ऑफ आईजीएसटी, वो क्या 4 या 5 पार्ट में कवर करता है कि अगर फिक्स लैंडलाइन सर्विस है तो जहाँ पे आपने इंस्टॉल की है, अगर पोस्टपेड कनेक्शन है तो बिलिंग एड्रेस है, अगर प्रीपेड का कनेक्शन है
तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पहला क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट के थ्रू सेल हो रहा है, तो सेल जो सेलिंग एजेंट है उसका लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ द सप्लाई। तो उसके हिसाब से हमेशा जीएसटी चार्ज होगा, भले आप रास्ते में कराओ, भले आप ई रिचार्ज कराओ, कैसे कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लोकेशन वुड बी रिलेवेंट है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सेलिंग एजेंट है, उसका माना जाएगा। अगर ये सिचुएशन अगर कवर नहीं होता, अगर कहीं पे भी कवर नहीं हो, तो जो सेलिंग एजेंट है जिसके थ्रू आप रिचार्ज करवा रहे हो, उसका लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है सुरजीत जी। नेक्स्ट पॉइंट गौरव खन्ना जी कह रहे हैं आरसीएम लिमिट पर कॉन्ट्रैक्ट ₹1000। आप इसकी बात करें, जीटी की बात करें, आरसीएम का लिमिट पर कॉन्ट्रैक्ट ₹1000, समझा नहीं। एक वो जीटी की एग्जेम्पशन की अगर आप बात करें गौरव जी, फॉर एग्जांपल मैं सीरियल नंबर 21 की बात करता हूँ, वहां पे 2 एग्जेम्पशन है। अगर मेरा पर कंसाइनमेंट है तो 750 तक है, तो वो ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट है। और अगर मैं पूरा कन्वेंस लेता हूँ, पूरा व्हीकल लेता हूँ, तो 1500 रुपए तक का अगर मेरा फेयर है, फ्रेट है, तो वो एग्जेम्प्ट है 21 के कारण, तो उसमें आरसीएम नहीं आएगा। अगर अमाउंट उससे एक्सीड हो रहा है तो फिर आरसीएम आएगा। वहां पे काफी सारी एग्जेम्पशंस है, तो वो आप एक बार रेफर कर सकते हैं। हेमंत जोशी जी का, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एक्सक्लूसिव द गुड्स फॉर बेनिफिट ऑफ ₹40 फॉर बेनिफिट ऑफ ₹। यहाँ पे 2 बात की थी मैंने। देखो, पहला बात किया था कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द गुड्स हैं तो आपकी लिमिट कितनी होगी, 20 लाख की जगह 40 होगी, प्रोवाइडेड स्टेट ने बढ़ा दिया। और मैंने कुछ एक स्टेट ने अभी भी 20 रखा हुआ है, तो वो स्टेट का नाम मैंने आपको बता दिया। अब मान लो वो क्या कहता है, एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द गुड्स है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वैसे तो गुड्स का काम करता हूं, ठीक है ना, बट मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम आ रही है। क्या चीज की आ रही है, मेरी एक बिजनेस की फिक्स डिपॉजिट है और बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रहा है। तो मेरे लिए इनकम क्या है, मेरे लिए इनकम सप्लाई होगी ना, आउटवर्ड सप्लाई है। तो मैं कहता हूं कि मेरे अकाउंट में, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक चीज आ रही है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या जो ये बेनिफिट है वो मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता भाई। अदरवाइज मैं एक्सक्लूसिवली सप्लाई द गुड्स कर रहा हूं, बट अगर आप मेरा पैन नंबर चेक करोगे, वहां पे गुड्स भी है और साथ में इंटरेस्ट इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है बट सर्विस है। तो क्या मैं मुझे ये कहा जाएगा कि मैं एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द गुड्स? तो उस एक्सप्लेनेशन के बाद में आंसर इज यस। लेकिन एट द सेम टाइम यू ऑलवेज रिमेंबर कि वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा। मान लो आपकी 30, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं या सभी से क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो मेरी 39 लाख है एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ द गुड्स और 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम है। 39 लाख मेरी गुड्स की सप्लाई से है और 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम है। तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना, तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, 41 लाख या 39 लाख, 39 या 41? मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी होगी? आंसर इज 41। अब मैं 41 तो, अब आप मुझे बताइए मेरे लिए रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट 20 लाख थी या 40 लाख? मेरे लिए रजिस्ट्रेशन लेने की लिमिट 20 लाख थी या 40 लाख? आंसर इज 40। यही वाला पॉइंट है, आंसर इज 40। व्हाई 40? because whether I would be treated as a exclusively engaged in the goods, answer would be yes, because interest की जो income है वो आपको ineligible नहीं बनाएगी। That is the only part which I like to explain. I hope it is clear. Kindly confirm, sir. And now we can conclude our discussion. Sumit ji, over to you. Thank you. Thank you, Arun ji, for your wonderful discussion. And last, my rental income 19 lakh plus interest 3 lakh required for GST. Last question. Yes, answer is yes. Yes. So thank you everyone, and now we will meet again tomorrow. And Arunji has another class, so thank you Arunji for giving your wonderful session. Thank you very much. Okay. Thank you to goodbye sir. Goodbye participant for joining. And the recording will be shared tomorrow and along with the presentation. Thank you Arun bhai. Thank you.